Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to continue the first chapter of Class 8 NCERT, The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. So, I hope you have watched the part 1. If you have not watched the part 1, then please I request you to watch the part 1 first and then you can come on this video. So, I hope you remember the story. So, we ended till here. Let's continue the story. Okay, let's continue the lesson. I hope you remember the characters of the lesson: Jim McPherson, Connie, Hans Wolf, and our narrator. So here both these countries, okay, Germany and British, Hans Wolf and Jim McPherson, both of them and their team members, they are playing the football. Then they said, if no one dies in football match, no children are orphaned, no wives become widow, I would prefer cricket. I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. So they said that no football because he's from England. So they said that cricket would be the appropriate game. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie Frizz won. Okay, this is then he says, because this letter is addressed to Connie. Okay, it's very sad to say, but Fritz they won. Okay, this is how you can see in the picture. Both the German and Britishers, they are playing the football in no man's land. 2-1. Okay, 2-1. That was the score. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs. So now here Hans Wolf says that our goal was wider. Wider means क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही wider था, तो वो बहुत easily बोल कर सकते थे. ओके, मीन्स बहुत अच्छी तरह से इजीली बॉल को पास कर सकते थे, गोल कर सकते थे. सो वाइडर था देन देयर्स. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. तो ये फेयर नहीं था. तो हारने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा. ओके, चलो यहाँ से शुरू करते हैं. टिल हियर वी स्टॉप. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द शनेप्स एंड द रम एंड द सॉसेज had long since run out and we knew it was all over. Okay, so time came and all, okay, too soon when the game was finished. Schnapps, okay, drink, the rum and the sausage, everything, okay, got finished and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon, that the fighting would end एंड वी कुड ऑल गो होम. सो वो विश करने लगे कि शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और बहुत जल्द हम अपने घर वापस जा सकें. मीन्स देयर शुडंट बी अ वॉर. दैट वॉट ही दे स्टार्टेड थिंकिंग. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स. हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर. जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ओके, सो एक बहुत ही याद रखने वाला मोमेंट था ये. एंड दे सेड टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. ओके, हम कभी नहीं भूल पाएंगे. ऑफकोर्स, ओके, दो बिट कंट्रीज एंड एट दैट ऑल्सो इन द वॉर जोन एंड जस्ट शोइंग दैट फ्रेंडलीनेस, एक हैप्पीनेस एक दूसरे को दिखा रहे थे. तो ये कैसे भूलने लायक एक लम्हा हो सकता है. सो नेवर. देन he saluted and walked away. So I shall never forget this moment. And he saluted and walked away from me slowly, unwillingly. Okay, means इच्छा नहीं थी देखो उनके जाने की वहाँ पर. Okay, कोई इतनी इच्छा नहीं थी जाने की, but unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. So I felt he turned to wave just once. ओके, एक बार फिर से वो मुड़ा. ओके, एंड जस्ट वेविंग द हैंड्स एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन. ओके, मीन्स सभी में ओके मिक्स हो गए, ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और अपने ट्रेंचेस के तरफ वो चले गए. दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स, जब हम वापस हमारे डगआउट्स में आए. ओके, मीन्स जहाँ पर वो एक मीन्स रहते हैं. ओके, एक गड्ढे को खोद कर जिसमें वो अपना एक टेंट जैसा बनाते हैं. सो वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल. ओके, कैरोल होता है, क्रिसमस कैरोल होता है. जिंगल बैल सुना होगा शायद आपने. तो वैसे कुछ कैरोल वो गा रहे थे बिकॉज इट वॉज अ क्रिसमस ईव एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. बहुत अच्छी तरह से गा रहे थे. इट वॉज स्टाइल नाच्ड साइलेंट नाइट
our boys gave them a rousing chorus, और हमारे बॉयज़ ने भी उनको कोरस दिया. ओके, ये साइलेंट नाइट. while shepherd watched, okay, while shepherd watched, we exchanged carols for a while and then we all fell silent. तो हमने ओके एक्सचेंज किया, जैसे कि एक अंताक्षरी हो वैसे साथ में गाना और ये हो. सो बोथ ऑफ देम दे enjoyed. Then we exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time while and then we all fell silent. We had our time and we all means they had the time, our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I'll live. तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऐसा टाइम है कि जो कोई भी इंसान ओके हमेशा के लिए याद रखेगा. सो दैट वर्ड ओके दे मेंशन. नेक्स्ट, डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस टाइम next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. So here he addresses again Connie and says that this Christmas time, okay, next year, this will just be a memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. Okay, कितनी इच्छा हम एक दूसरे के अंदर रख रहे थे for the peace. We shall be together again soon, I am sure for it. Okay, हम बहुत ही जल्दी एक साथ हो जाएंगे. ओके, वी ऑल विल बी टुगेदर. योर लविंग जिम. सो हियर हिज लेटर एंड्स एंड द नरेटर फिनिशेस रीडिंग. सो दीज आर द क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन चेक. टेक अ पॉज इन द वीडियो and please read this question and try to answer by your own so that at least you will come to know whether you have understood this lesson till here or not. Let's go next. This is the third part. I folded the letter again and slipped it केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप. तो वापस यहाँ पर नरेटर आ जाते हैं, वो लेटर को वापस अपने पास रख लेते हैं ओके फोल्ड करके. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. ओके, मॉर्निंग तक मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है. ओके, मुझे व्हाट आई सपोज टू डू द नेक्स्ट मॉर्निंग. आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. तो ऑफकोर्स वो लेटर पर भी एड्रेस यही का था ब्रिडपॉट, तो उसे ये लेटर अब जिस इंसान के लिए लिखा है उसको देना है. सो ही ड्रो इनटू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. तो एक लड़का उसे मिला जो अपने डॉग के साथ था. तो ये कॉपर बीचेस कहाँ पर हैं? हाउस नंबर 12. टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. तो तुरंत मुझे एड्रेस मिला और मैं वहाँ पर गया, लेकिन वो जो हाउस नंबर 12 था वो टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. पूरी तरीके से जलकर ओके पूरा बहुत ही ओके एक खंडेर जैसा हो गया था. ओके, सो बर्नड आउट शेल. द रूफ गैपिंग. ओके, रूफ भी पूरा ओके उखड़ चुकी थी. द विंडोज़ बॉर्डेड अप. ओके, खिड़कियाँ भी ओके निकल चुकी थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. तो कोई जानता है ओके वेयर अबाउट मीन्स कि उनका लोकेशन कहाँ पर है. वेयर इज शी इन एट प्रेजेंट. कोई जानता है यहाँ पर ओके कि वेयर इज मिसेस मैकपर्सन. ओ यस सेड द वन ओल्ड मैन. तो एक ओल्ड आदमी था वहाँ पर बाजू में, उनका नेबर. ओके, इन हिज स्लीपर्स. तो स्लीपर पहनकर वो बाहर निकला. ही न्यू हर वेल. अ लवली ओल्ड लेडी. बहुत ही ओके अच्छी लेडी थी, अच्छी लेडी है. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड. ओके, मडल हेडेड क्या होता है कि एक कन्फ्यूज स्टेट में. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी वॉजंट शी. अब उनकी इतनी एज हो चुकी थी यहाँ पर किसकी? कॉनी की. तो बहुत ही हमेशा वो एक कन्फ्यूज़ रहती थी ओके हमेशा. तो ये एक एंटाइटल इस एज में उनको देना, दैट इज़ ओके बिट एंटाइटल टू बी वॉजंट शी. 101 years ओल्ड. तो इतनी पुरानी ओके इतनी एजेड लेडी अगर कोई है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है ओके देन ऑल दैट. सो ज़्यादा करके आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं ओके उनका एक अलग ही बिहेवियर हो जाता है. सो दैट शी वॉज. देन शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. ओके, जब घर में आग लग चुकी थी तब वो घर में ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. तो वो हमेशा कैंडल्स जला ली थी, तो शायद कैंडल की वजह से आग लगी होगी. शी यूज टू कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. तो हमेशा वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी और ये कैंडल की वजह से ही आग लगी होगी. शी वॉज इन नर्सिंग होम. सो द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तो बहुत ओके कम टाइम में फायरमैन ने उनको निकाला. शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ. तो नर्सिंग होम में है वो. ही टोल्ड मी
बर्लिंगटन हाउस, ओके, सो इन नर्सिंग होम, नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, ओके, तो बर्लिंगटन हाउस जो है नर्सिंग होम वहाँ पर है ऑन दी डॉर्चेस्टर रोड ऑन दी अदर साइड ऑफ टाउन। तो यहाँ पर ओके ये जो डॉर्चेस्टर जो है ओके एंड डॉर्चेस्टर एंड बर्लिंगटन हाउस वहाँ पर वो है। सो ही केम टू नो द एड्रेस। Comprehension check, please go through the okay questions, take a pause in the video and read the questions and try to answer them. Next, I found Burlington House nursing home easily enough, okay, बहुत ही जल्दी मुझे मिल गया वो। There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top. सो बहुत जल्दी उसको वो घर मिल गया, मीन्स बर्लिंगटन हाउस मिल गया, नर्सिंग होम मिल गया। सो देर वर पेपर चेन्स, पेपर चेन्स मीन्स आपको पता होगा एक डेकोरेटिंग चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओके इस तरीके से जो पेपर चेन्स होते हैं। सो वो पेपर चेन्स थे वहाँ पर लटक रहे थे। हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्रीज, तो क्रिसमस ट्री भी लाइट थी कि उसके ऊपर पूरा डेकोरेशन किया था। इन द कॉर्नर विद द लॉप साइडेड एंजल, लॉप साइडेड एंजल होता है ओके एक साइड पर थोड़ा झुका हुआ और उसके ऊपर एक एंजल थी, ओके जो क्रिसमस में एक उसका एक इंपॉर्टेंस होता है, तो एक एंजल क्रिसमस ट्री के ऊपर थी। सो लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप, ओके ऑन द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं ओके कॉनी का मिसिस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ एंड आई हैव कम हियर टू विजिट हर। So and brought a Christmas present for her. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. अब मैंने वहाँ पर देखा कि सभी जो हैं वो पेपर की कैप, जैसे छोटे बच्चों का जो बर्थडे होता है और उसमें कैसे पेपर कैप सभी पहनते हैं, ओके तो वैसे ही इन लोगों ने भी पेपर कैप पहन रहे और एवरीबडी वॉज सिंगिंग। द मैट्रोन, मैट्रोन मीन्स जो इंचार्ज नर्स होती हैं वो, ओके मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, ओके तो मैट्रन ने भी अपने सर पर हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, तो वो भी बहुत खुश थी मुझे देखकर, किसे, नरेटर को देखकर, ओके ऑथर को देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, मिन्स पाई एक पाई एक प्रकार का मीट का बना होता है, ओके तो वो ज़्यादा करके क्रिश्चियनिटी जो पीपल होते हैं दे प्रीफर, ओके ईटेबल थिंग है एक। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, ओके वो ये सब दूसरे लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो वो थोड़ी आज कन्फ्यूज दिख रही थी तो हमें लगा कि वो एक अच्छा ओके रेस्ट करे तो बेहतर है उनके लिए। सो इज दैट बेटर दैट शी टेक्स द रेस्ट। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, ओके तो उन्हें बहुत खुशी होगी जब वो तुम्हें देखेगी क्योंकि कोई उनको विजिट करने के लिए नहीं आता है, ओके नोबडी कम्स टू सी हर। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me. So she took me to the conservatory. Conservatory means एक ऐसा रूम होता है जो थोड़ा जो रेगुलर रूम होते हैं उससे थोड़ा दूरी पर बनाया होता है, ओके एक बाहर के साइड पर बनाया होता है, तो वहाँ पर मुझे लेकर गए जहाँ पर विकर्स के लिए चेयर्स भी थे एंड पॉटेड प्लांट्स भी थे मेरे दोनों तरफ के अराउंड एंड लेफ्ट ऑन मी। सो बट प्लांट्स वर ऑल्सो देयर। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, her hands were folded on her lap. She had silver white hair pinned into wispy bun. तो उनका जो she had a silver white hair, तो बहुत 101 year old, ओके तो बाल भी उनके पूरे सिल्वर हो चुके थे एंड she her hair पिंड इनटू अ विस्पी बन। विस्पी बन मीन्स यहाँ पर आप जरा इमेज में देखें, ये जो इमेज यहाँ पर दिया है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस तरीके से बाल को बांधना, थोड़े बाल जो है वो खुले रहते हैं एंड ओके टू टाई, लड़कियाँ शायद अच्छी तरह से समझ सकती हैं, विस्पी बन के तरह अपने बालों को उन्होंने ओके पिन किया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, हेलो आई सेड, ओके सो शी वॉज गेजिंग, गेजिंग मीन्स एक तरफ एक से देखते रहना ओके किसी चीज़ को। सो शी वॉज जस्ट कंटिन्यूसली लुकिंग एट द गार्डन। देन आई सेड हेलो, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, ओके वैकेंटली क्या है, बहुत ही ज़्यादा सैडली, ओके बहुत उदासीनता से वो मेरे तरफ देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस। सो जैसे ही उसने देखा, नरेटर ने देखा तो तुरंत उसे विश किया, हैप्पी क्रिसमस कॉनी,
आई वेंट ऑन, मैं उसके पास गया, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, ओके, ये तुम्हारा है, ओके, मुझे लगता है कि तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नर्व लेफ्ट माई फेस, ओके, सो हर आइज, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो जैसे मैं उनके साथ बातें कर रहा था उनकी आंखें जो थी, ओके, उन्होंने मेरे चेहरे से वो हटी ही नहीं, ओके, मीन्स उनकी जो आंखें थी, सो शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, तो वो जो टीन बॉक्स मुझे मिला था वो मैंने ओपन किया एंड आई गेव इट टू हर, give it to her. So then what happened, as I was speaking to her, eyes never left on my face, I opened her tin and gave it to her. That was the moment her eyes lit up, okay, lit up, यहाँ पर lit up का मीनिंग दिया है became bright with happiness, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओके खुश हो गई देखकर। सो हर आइज़ वर lit up, ऑफ कोर्स नाउ ये लेटर देखकर उसके आंखों में ओके उसके चेहरे पर वो खुशी आनी ही थी। सो शी वॉज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी टू सी दिस। So I found this, I hope this is yours, and that was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused. Suffused means glow of happiness spread all over her face, okay, so she was suffused with a sudden glow of happiness. So उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है, आप यहाँ पर थोड़ा पिक्चर में भी देख सकते हो, okay, that happiness, okay, as soon as narrator shows her the letter and she was very happy. Then आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, ओके, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया कि डेस्क और ये मुझे कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल, ओके, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे सुन रही थी। शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, ओके। अब स्ट्रोक्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रोक्ड होता है टू मूव योर हैंड जेंटली, ओके, उसके ऊपर हाथ फेरना बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत ओके दिनों के बाद ये लेटर उनको मिलता है तो शी गेट्स दैट इमोशनल थोड़ी हो जाती। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों से आंसू आ जाते। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, ओके, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस ओके तक आ जाओगे और देखो तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर हमारे लेसन का नाम आता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो यही सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। हम हमेशा बातें करते रहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रेजेंट है ओके गिफ्ट है वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, नहीं दोस्तों, ओके, फ्रेंड्स की सबसे बड़े जो गिफ्ट है वो हमारे लिए लिविंग बींग्स हैं, जो हमारे मम्मी है, पापा हैं, ओके, हमारे भाई बहन हैं, दे आर द बिगेस्ट गिफ्ट। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा ट्विस्ट है स्टोरी में, ये नरेटर है लेकिन कॉनी उनको समझती है जिम, कि जिम आया है, जिम मैकफर्सन आया है, तो कम ऑन जिम सिट। सो आई सेट डाउन, ओके, लेकिन फिर भी बिना नेग्लेक्ट नहीं करते ऑथर और वो बैठ जाते हैं। एंड शी किस्ड माई चिक, ओके, और तुरंत उनके चिक पर किस भी करती हैं। आई read your letter so often Jim, every day I wanted to hear your voice in my head, it always made me feel you were with me, okay, हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। and it always made me feel that you are always with me and now you are, okay, और तुम मेरे साथ आज हो भी मेरे साथ, okay, you are there with me, now you are back, you can read it to me yourself, would you do that for me, okay, तुम मेरे लिए पढ़ोगे आज ये लेटर जिम डियर, ओके, विल यू रीड फॉर मी, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, ओके, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, बहुत समय हो गया मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, आई वुड लव दैट सो मच, ओके, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ओके नाइस केक फॉर यू, एंड दैट केक ऑफ कोर्स यू रिमेंबर मार्जिपन, ओके, मार्जिपन ये केक है। ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, सो मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन केक कितना ज़्यादा पसंद है। माइकल मोरपुर्गो। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द लेसन एंड द स्टोरी, एंड आई होप यू ऑल्सो लव द केक, आपको भी पसंद आता होगा केक। ऑफ कोर्स ये मार्जिपन केक तो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो ऐसे इंटरनेट पर। यू कैन इवन टेक द पॉज इन द वीडियो एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन चेक, read the question, okay, try to answer them by your own so that you can understand whether you have understood the lesson or not. So thank you so much. If you really enjoy watching this video, then do hit the like button, and for the further latest updates please subscribe my YouTube channel. Thank you so much.